ویلکم بیک. بلیٹن کریں گے باقاعدہ آغاز. آپ کو بتائیں گے 9 اگست کی رات اسمبلی تحلیل کر دیں گے. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے بتا دیا. بولے انتخابات کو کسی سازش یا خاص مقصد کے تحت آگے نہیں بڑھایا جائے گا. مردم شماری نوٹیفائی ہونے سے مزید تنازعات جنم لیں گے. نون لیگ نے اسحاق ڈار کا نام نگراں وزیر اعظم کے لیے نہیں دیا. اسحاق ڈار، رضا ربانی سمیت کسی بھی سیاستدان کا نام دیا جا سکتا ہے. نواز شریف الیکشن سے 1.5 ماہ قبل وطن واپس آئیں گے. چاہتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی عدالت سے نااہل ہوں، عدالت سے سزا اور جیل ہو جائے. مزید آپ کو بتائیں گے نگراں وزیر اعظم کے اختیارات میں اضافہ. پارلیمنٹ نے منظوری دے دی ہے. الیکشن ایکٹ ترمیمی بل پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں منظور کیا گیا. نگراں حکومت کو ملکی معیشت کے لیے ضروری فیصلوں کا اختیار ہوگا. نگراں حکومت نجکاری پروگرام پر فیصلے کرنے کی مجاز ہوگی. ماہر قانون ابو ذر سلمان کا کہنا ہے ایکٹ میں ترمیم سے نگراں وزیر اعظم کسی کو جواب دہ نہیں ہوگا. ترمیم سے نگراں وزیر اعظم کو بادشاہ بنا دیا گیا ہے. نیا اختیار نہیں دیا جا رہا کیئر ٹیکرز کو. وہی ان کا مینڈیٹ ہے جو ایک ٹرسٹی کا ہوتا ہے کہ وہ ڈے ٹو ڈے چیزیں دیکھیں گے، لیکن ملکی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ایکسپلینیشن کائنڈ آف سچویشن ہے جو پرووائزو کی صورت میں دے دی گئی ہے کہ لتھارجی آڑے نہ آئے اور یہ نہ کہا جائے کہ یہ پتہ نہیں اختیار ہے کہ نہیں ہے. مزید آپ کو بتائیں گے پی ٹی آئی سینیٹر علی ظفر کی پارلیمنٹ میں انتخابی اصلاحات میں ترمیم کی مخالفت. کہا باہر نکل کے کہتے ہیں اتفاق کے ساتھ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی ہے. غیر قانونی متنازع اور غیر آئینی ادارے لے کر آ رہے ہیں، اس سے باز رہیں. انہوں نے اس ترمیم میں کچھ نرمی ضرور کی ہے لیکن وہ نرمی مناسب نہیں. اگر ہم نے مسترد نہ کیا تو 10 دن میں سپریم کورٹ اسے کالعدم قرار دے دے گی. نکلتے ہمارا یہ ہم سب کہتے ہیں یہ کنسنسس کے ساتھ الیکشن ایکٹ میں ہم نے ترمیم کی ہے. آپ ایک ہائیلی کنٹروورشل، انلیگل، انکانسٹیٹیوشنل، وائڈ اب انیشو امینڈمنٹ لے کے آ رہے ہیں. کائنڈلی ریفرین فرام اٹ. یہ جو ترمیم لے کے آ رہے ہیں انہوں نے کچھ اس میں ڈائلیوشن ضرور کی ہے لیکن وہ ڈائلیوشن سفیشینٹ نہیں ہے. اس کو ریجیکٹ کریں کیونکہ اگر ہم نہیں کریں گے تو 10 دن میں سپریم کورٹ اس کو ریجیکٹ کر دے گا. اٹ از سچ این انکانسٹیٹیوشنل لا. مزید آپ کو بتائیں گے اسحاق ڈار سے رشتہ داری نون لیگ کو مشکل میں ڈال سکتی ہے. سابق سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر کی پروگرام آف دی ریکارڈ میں گفتگو بولے 1.5-2 سال میں آئین کو بے وقت کر دیا گیا. پنجاب اور کے پی میں الیکشن 90 روز میں نہ کرانے سے آئین کی خلاف ورزی ہوئی. حکومت نے تہیہ کر لیا ہے کہ الیکشن کو متنازع بنانا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کو بھی اپنا رویہ لچکدار کرنا چاہیے تاکہ کوئی راستہ نکلے. 1.5-2 سالوں میں کانسٹیٹیوشن کی وقت ایسی کر دی ہے کہ اس کے اوپر اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. کیا ڈار صاحب کی موجودگی میں ہم یہ بات پھر وثوق سے کہہ سکیں گے کہ نگران وزیر اعظم بالکل کریڈیبل آدمی ہے، نیوٹرل ہے، ان کی رشتہ داری اس کا نقصان سب سے زیادہ مسلم لیگ نون کو ہوگا. نتائج کو ہم نے پہلے دن سے کنٹروورشل بنانا ہے. جس طرح اسحاق ڈار صاحب کا فیصلہ ہے یا یہ 230 کی امینڈمنٹس آ رہی ہیں. عمران خان صاحب کا جو رویہ ہے وہ غیر لچکدار ہے. انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ، سیاستدانوں کے ساتھ اپنی کوئی اس طرح کی ورکنگ ریلیشن شپ نہیں رکھی. مزید آپ کو بتائیں گے آئی ایم ایف نے ہمارے ہاتھ باندھ دی ہے. مل کر کام کریں تو آئی ایم ایف کے چنگل سے نکل جائیں گے. پاکستان اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کا کراچی چیمبر آف کامرس میں ایکسپورٹ ایوارڈز کی تقریب سے خطاب. کہا کراچی میں پانی کا مسئلہ 1 سال میں ختم کریں گے. ویلکم بیک. اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے سعودی عرب کے سابق سفیر ڈاکٹر علی اوان السیری نے دعویٰ کیا ہے کہ 2 ممالک پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہے. سعودی عرب، یو اے ای اور قطر پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری کریں گے. اس بات کا انکشاف انہوں نے اپنے حالیہ مضمون میں کیا. لکھا پاکستان ساون فنڈ بنایا جائے گا جو بیوروکریٹ اور ریگولیٹری دقتوں سے پاک ہوگا. 7 ریاستوں کے $8 ارب کے اثاثے ساون فنڈ میں منتقل کیے جا رہے ہیں. حصص اور فروغ کے ذریعے اس میں مزید اضافہ ہوگا. حکومت پاکستان خلیجی ممالک کے ساتھ مل کر خسارے میں جانے والے اداروں کی نجکاری پر کام کرے گی. 2035 تک پاکستان کی معیشت $1 ٹریلین ہو جائے گی. ہنرمند پاکستانی کو خلیجی ممالک میں روزگار ملے گا. مزید آپ کو بتائیں گے پی ایف یو جے نے پیمرا ترمیمی بل میں ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن پر صحافیوں کے تحفظات دور کرنے کا مطالبہ کر دیا. پی ایف یو جے نے زور دیا ہے کہ حکومت مجوزہ سزاؤں کی ترمیم پر بھی میڈیا ورکرز کے خدشات اور تحفظات دور کرے. پی ایف یو جے کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ حکومت مشاورت وسیع کرے اور حتمی مشاورت تک شک کو
बिल का हिस्सा ना बनाए। चेयरमैन पेमरा का इख्तियार काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स को मुंतकिल करने की तरमीम का खैर मकदम करते हैं, लेकिन काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स में PBA और PFUJ को वोट का हक भी दिया जाए। इलामी में कहा गया है कि मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी ना करने पर सरकारी इश्तिहार रोकने की तरमीम और तारीख साज है। PFUJ ने वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरीम औरंगजेब से अपील की है मीडिया मालिकान को पाबंद बनाया जाए कि मीडिया वर्कर्स को हुक्म से 7 तारीख तक माहाना तनख्वाह अदा करें, और ये इबहाम भी दूर किया जाए कि क्या चैनल मालिकान अब 2 माह बाद तनख्वाह दिया करेंगे। PFUJ ने मुलाजिमीन को तनख्वाहों की अदम अदायगी से मुतालिक तरमीम का खैर मकदम भी किया है। पहला निशाने हैदर पाने वाले कैप्टन सरवर शहीद का आज 75वां यौम शहादत है। क़याम पाकिस्तान के बाद भारत के साथ कश्मीर की जंग में जुर्रत और बहादुरी के साथ लड़ते हुए जान का नजराना पेश किया। बहादुरी की बेमिसाल तारीख रकम करने पर कैप्टन सरवर शहीद को निशाने हैदर से नवाजा गया है। मजीद आपको बताएंगे, हुकूमत की मुबहिना इंतकामी कार्रवाइयां। PTI सेनेटर डॉक्टर जरका के लाहौर में 2 क्लिनिक सील कर दिए गए। गुज़श्ता रोज वज़ीर दिफा की खवातीन के लिए बदतहजीबी पर PTI सेनेटर ने उन्हें खूब आड़े हाथों लिया था। गुज़श्ता रात ही डॉक्टर जरका के क्लिनिक पर छापे मारे गए। PTI सेनेटर डॉक्टर जरका की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू कहा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के दौरान राना सनाउल्लाह से वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जरका जावेद अकरम की बात करवाई। राना सनाउल्लाह ने कहा, आपको पहले ही कहा था या आप रहेंगे या हम। राना सनाउल्लाह की जमात के 3 सेनेटर्स इस बात के गवाह हैं। केयर कमीशन के CEO का मुझे फोन आया कि जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, आप हमारा नाम ना लें। फिर मुझे आया फोन डॉक्टर जावेद अकरम साहब, जी पंजाब के हेल्थ के मिनिस्टर हैं, उन्होंने फरमाया हमारा कोई आदमी नहीं आया आपके क्लिनिक में। डॉक्टर जावेद अकरम का फोन दिया राना सनाउल्लाह को, हम उस वक्त जॉइंट सेशन में बैठे थे, तो राना साहब ने उनका फोन लेके कहा अच्छा मैं चेक करता हूँ। उसके बाद राना साहब ने DIG ऑपरेशंस को फोन किया और फिर मुझे कहते हैं कि आपको पता है मैंने तो पहले ही कहा था या आप रहेंगे या हम रहेंगे, तो आपके लीडर ने ऐसी बातें की तो फिर ये तो होगा। राना साहब की अपनी पार्टी के 3 सेनेटर गवाह हैं, हमारी पार्टी का भी कोई 1 सेनेटर बैठा था। चेयरमैन PTI FIA हेडक्वार्टर्स में पेश हूं। FIA ने साइफर मामले की तहकीकात के लिए चेयरमैन PTI को मंगल 1 अगस्त को तलब कर लिया। मुश्तरका तहकीकाती टीम की जानिब से जारी किए गए नोटिस में उन्हें दस्तावेजात के साथ दोपहर 12 बजे FIA हेडक्वार्टर्स में पेश होने की हिदायत जारी की गई हैं। नोटिस में कहा गया है कि चेयरमैन PTI पेश ना हुए तो उनके खिलाफ एकतरफा कार्रवाई की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना फौजदारी केस रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवा दिया है। रिमार्क्स ये पुरुमीद है हाई कोर्ट चेयरमैन PTI की दीगर दरख्वास्तों के साथ ये केस भी सुनेगी। समाज से कबल चेयरमैन PTI की मौजूदगी में कमरे अदालत के बाहर शोर शराबा हुआ। बेंच के सरबराह जस्टिस यहया अफरीदी ने कहा बाहर शोर शराबा खत्म करवाएं वरना हम केस नहीं सुनेंगे। बेंच कुछ देर के लिए उठकर चला गया। मजीद खबरें शामिल करेंगे, आपको बताएंगे 190 मिलियन पाउंड मुंतकिली केस में नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड के होने वाले इजलास के निकात मंजर आम पर आ गए। नैब ने 190 मिलियन पाउंड मुंतकिली केस 2020 में बंद करने का फैसला किया था। रकम सुप्रीम कोर्ट को मुंतकिल होने पर केस नहीं चलाया जाएगा। अगर रकम अदालत उज़्मा को मुंतकिल नहीं हुई तो फिर एक्शन होगा। मुआहदे के मुताबिक 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट मुंतकिल हो चुके हैं। लाहौर की स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालती हुक्म के बावजूद चौधरी परवेज इलाही को पेश न करने पर IG पंजाब, IG जेल खाना जात और होम सेक्रेटरी को 50-50 हर्जाना जुर्माना और तनख्वाहें बंद करने का हुक्म दे दिया। DIG ऑपरेशन ने अदालत को बताया है कि डियाला जेल हुकाम परवेज इलाही को हवाले नहीं कर रहे क्योंकि उनकी नजरबंदी के अहकाम जारी किए गए हैं। अदालत ने 3 बजे तक परवेज इलाही को पेश करने का हुक्म दिया, ताहम अदालती हुक्म पर अमल नहीं हुआ। अदालती हुक्म उदूली पर बगैर इजाजत परवेज इलाही की पिंटी मुंतकिली पर फाजिल जज ने IG पंजाब, IG जेल खाना जात और होम सेक्रेटरी को 50-50 जुर्माना कर दिया है।
मजीद आपको बताएंगे, पीटीआई के हलीम आदिल शेख सिंध असम्बली के ऑपोजिशन लीडर नहीं रहे हैं। एमक्यूएम के राना अंसार सिंध असम्बली की ऑपोजिशन लीडर मुंतखब हो गई। जीटीए और पीटीआई के मुनहरिफ अरकान ने भी राना अंसार की हिमायत की है। राना अंसार सिंध असम्बली की पहली खातून ऑपोजिशन लीडर हैं। एडवांस में अपनी बहन को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि वो फर्स्ट लेडी मेंबर और वो पार्लियामेंट में रही हैं, पुरानी सीनियर मेंबर रही हैं। वंस माय नोटिफिकेशन इज इशूड देन आई विल कॉल यू टू टेक ओवर ऑन दैट सीट। वो हमारे सिंधी में कहते हैं तीन ट्रपड़ उठा के उधर आ जाएं। सिंध असेंबली में ऑपोजिशन लीडर जीटीए का हक था। जीटीए का हक एमक्यूएम को कैसे दे दिया गया? अयाज लतीफ की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। बोले पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम तो विफाक में इत्तेहादी हैं, वो ऐसा निगरान सेटअप लाएंगी जो इन दोनों के मफाद का तहफ्फुज करेगा। इस पे जीटीए का हक था और पीर साहब पगारा ही सिंध में रियल अपोजिशन करते रहे, जीटीए करती रही है। तो उन्होंने अगर उनका हक था तो क्यों जाने दिया ये हक? हाँ, मैं इस पे मुझे हैरत है कि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम तो साथ साथ हैं, यानी वो तो अपनी मर्जी का पूरा निगरान सेटअप लाएंगे। तो होगा ये कि 2013 और 2018 की इलेक्शन की तरह निगरान सेटअप इस किस्म का आ जाएगा जो पीपल्स पार्टी के मफादात की तर्जुमानी करेगा और सिंध में अनबायस और इम्पार्शियल इलेक्शन हो ही नहीं पाएंगे। मजीद आपको बताएंगे, आइस के नशे में मदहोश मुल्जिम हवास खो बैठा। जालिम शख्स ने अपने ही प्यारों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ डाले। बीवी पर इंसानियत सोच तशद्दुद किया, अपनी मासूम बच्ची को बेनाई से महरूम कर दिया। यही नहीं, दूसरे 3 बच्चों को भी जख्म लगाने से बाज न आया। अहले मोहल्ला की शिकायत और ताउन से पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करके बच्चों और उनकी मां को रिहाई दिलाई और मुल्जिम को गिरफ्तार करके हवालात के हवाले कर दिया। कराची के इलाके कोरंगी में एक्शन फिल्म के मनाज़िर। पुलिस मुकाबले में 2 डाकू मारे गए। पुलिस के पहुंचने पर डकैतों ने बुजुर्ग मियां बीवी को जरकमाल बना लिया। सब इंस्पेक्टर हाजिर बख्श ने हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए डाकुओं को बातों में लगाया। कांस्टेबल वकार ने फायरिंग करके दोनों डाकुओं को निशाना बनाया। डाकुओं के मारे जाने पर शहरी ने खुशी से नारे लगाए। लाहौर से आपको खबर देंगे, लाहौर के इलाके ठोकर न्याज बेग में 2 गाड़ियों से बड़ी तादाद में असलहा बरामद करके 15 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। तर्जुमान डॉल्फिन पुलिस के मुताबिक स्याह शीशे वाली गाड़ियों से दौरान चेकिंग 5 जदीद ऑटोमेटिक राइफल और 8 पिस्तौल बरामद हुए हैं। मुल्जिमान ने हसास इदारों के कमांडो से ऐसा लिबास पहन रखा था। मुल्जिमान नाका अहलकारों के साथ सख्त मुजाहिमत भी करते रहे। असलहा गैर लाइसेंस याफ्ता है। मुल्जिमान दस्तावेजी मवाद भी पेश न कर सके। गिरफ्तार मुल्जिमान को थाना चौहन के हवाले कर दिया गया। तो खानेवाल पुलिस ने शहरियों से लूट मार करने वाले मुख्तलिफ गैंग्स के 16 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए हैं। मुल्जिमान के कब्जे से 3 करोड़ से जायद माली मसरूका बरामद कर लिया गया है। मज़ीद जानते हैं साजिद खान के इस रिपोर्ट में। पुलिस ने डकैती, सिरका बिल, जबर, नकबजनी और चोरी की वारदातें करने वाले 16 गैंग्स गिरफ्तार करके मुल्जमान के कब्जे से 3 करोड़ 62,84,000 का माल मसरूका और नकदी बरामद कर ली। डीपीओ राणा उमर फारूक ने अपने दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया, टोटल 16 गैंग्स पकड़े गए जिनकी अंदर मुलविस मुल्जिमान की तादाद जो है वो 39 थी। इनके कब्जे से 79 मोटरसाइकिलें, 5 गाड़ियाँ, 2 ट्रैक्टर, 3 रक्शे और नकदी 42,43,000 के करीब जो है वो बरामद की गई है। इनका जो ज़ेर इस्तेमाल असला था वो भी इनके कब्जे से जो है बरामद कर लिया गया है और कुल वारदात जो इन तमाम गैंग से ट्रेस हुई है उसकी तादाद 161 बनती है। डीपीओ के मुताबिक पुलिस ने गिरफ्तार मुल्जमान से 161 मुकदमा ट्रेस कर लिए हैं। डीपीओ का कहना है कि गिरफ्तार मुल्जमान पुलिस के लिए चैलेंज बने हुए थे, जिनको करार वाकई सजा दिलवाएंगे ताकि शहरियों की जान माल महफूज रह सके। कैमरा टीम के हमरा साजिद खान, ARY न्यूज, खानेवाल। कराची मलीर नदी में तुगयानी के बायस कुरंगी कॉजवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। शहरियों ने हिफाजती इंतजामात को नजरअंदाज कर दिया। मोटरसाइकिल सवार कॉजवे को ही इस्तेमाल करता रहे। अनवर खान की रिपोर्ट देखिए। मलीर नदी में तुगयानी बरकरार है, जबकि हुक्काम के मुताबिक ज़ेर इंतजामिया ने शहरियों की हिफाजत के पेश नजर काजवे जाने वाले रास्ते बंद करके पुलिस और ट्रैफिक पुलिस को तैनात कर दिया है। ताहम शहरी और मनचले नौजवानों की तरजीह काजवे का रास्ता ही रहा। जॉब पे जाने के लिए खड़े हुए थे, इतनी देर
3 घंटे 4 घंटे हो गए हमारे को निकले हुए घर से। पूरे रोड पूरा पानी भरा हुआ, अब हमारे लिए रिस्क है कि हमें जाना ही यहाँ से ही पड़ेगा। 2 रोड है हमारे जाने के, एक ये और एक इंडस्ट्रियल एरिया वाला है। इंडस्ट्रियल एरिया वाला भी बंद है, ये भी बंद है। सिक्योरिटी पर मामूर इंतजामिया अफसरान कहते हैं मना करने के बावजूद नौजवान मोटरसाइकिल के जरिए काजवे की हुदूद में दाखिल हो गए। इनको सबको मना करें, जितने भी बाज नहीं आ रहे हैं, कोई वहाँ से आ रहा है, रिद्दी अवामी को बिल्कुल बात मानने को तैयार नहीं है। मली नदी में तुगयानी के बाइस कुरंगी काजवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। ताहम उसके बावजूद नौजवानों की एक बड़ी तादाद मोटरसाइकिलों के जरिए इस रास्ते को इस्तेमाल करने पर बाजिद है। इंतजामिया का कहना है कि इस तरह की सूरत-ए-हाल किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ अनवर खान, ARY न्यूज, कराची। दादू में खैरपुर नाथिन शाह के ज़िला इंतजामिया की जानिब से सैलाब मुतासरा 500 खानदानों में मकानात के मालिकाना हुकूक की तकरीब तकसीम असनाद हुई। तकरीब में MNA रफीक जमाली, इरफान जफर लगारी, MPA अजीज उनेजो और फयाज भट्ट ने शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर दादू का कहना था कि सिंध हुकूमत की जानिब से आज 500 से ज्यादा सैलाब मुतासरीन को घरों के मालिकाना हुकूक दे दिए गए हैं। तौर पर यह पीपल्स पार्टी का एक प्रोग्राम है कि जो बेघर लोग थे या फ्लड में जिनके घर जो है वो टोटली बह गए थे, ख़त्म हो गए थे बारिशों की वजह से, उसमें ये हमारे चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का एक वादा था। उनको अपने मालकाना हुकूक की सनद जो है वो दी गई है ताकि वो जो उनका घर बने वो उनका अपना राइट हो उस पर। हुकूमत सिंध ने अपना वादा पूरा करते हुए आज की ये तकरीब का जो है वो हमने यहाँ पे ज़िला इंतज़ामिया ने एहतमाम किया है, जिसमें उन सब मुतासरीन को उनकी जो रिकन्स्ट्रक्शन है घरों की, उस मद में फंड्स और उस ज़मीन के मालिकाना हुकूक देने की जो है वो आज तकरीब मुनक्किद की गई है। क्वेटा कस्टम का स्मगलिंग और स्मगलर्स के खिलाफ क्रैक डाउन, करोड़ों रुपए मालियत का स्मगल शुदा सामान, खुशदूद, छालिया और गाड़ियों के टायर जब्त कर लिए गए। कलेक्टर कस्टम इन्फोर्समेंट क्वेटा इरफानुर रहमान खान के मुताबिक स्मगल शुदा सामान की मालियत 14 करोड़ रुपए से जायद है। ज़ियारत क्रॉस फ्लड इन्फोर्समेंट यूनिट और मोबाइल स्क्वाड ने दौरान गश्त सरखाब महाजिर कैंप के करीब ट्रक और कंटेनर को रोककर तलाशी लेकर गैर मुल्की टायर बरामद कर लिए हैं। एक और कार्रवाई में बड़ी तादाद में ममनुआ गुटखा, छालिया, चाइना, मुज़र सेहत, नमक, खुश्क दूध और मजीद चीजें भी तहवील में ले ली गई हैं। तर्जुमान कस्टम ने बताया है कि क्वेटा कस्टम ने रवा माह 1 अरब रुपए का गैर मुल्की स्मगल शुदा सामान बरामद कर लिया है। मज़ीद आपको बताएंगे, वाजिबात की अदम अदायगी पर FBR ने एक बार फिर PIA के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए हैं। FBR के मुताबिक PIA पर कई माह के टैक्सेस पर मबनी 2 अरब रुपए से जायद के वाजिबात हैं। वाजिबात की अदम अदायगी पर PIA के 53 अकाउंट्स गुज़िश्ता साल भी मुंजमद किए गए थे। इंतजामिया की जानिब से वाजिबात की जल्द अदायगी की यकीन दहानी पर अकाउंट्स को बहाल किया गया था। PSO ने कौमी एयरलाइन की 3 परवाजों को फ्यूल की फराहमी से भी इनकार कर दिया। इस्लामाबाद से कराची की परवाज PK309 कराची ता मुल्तान PK330 मुतासिर हुई। फ्यूल ना मिलने के बायस मुल्तान से जद्दा की परवाज PK739 भी मुतासरा परवासों में शामिल है। तर्जुमान PIA ने अकाउंट्स बंदिश की तस्दीक करते हुए बताया कि अकाउंट्स बहाली के लिए FBR से हुकूमती सतह पर राब्ते जारी हैं। अकाउंट्स बंदिश के बावजूद फजाई ऑपरेशन जारी है। मुल्तान में फलों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मौसम के फल भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुके हैं। राना फारूक की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में महंगाई के बेकाबू जिनको ब्रेक न लग सकी। अशियाए खुर्दोनोश के बाद फलों की कीमतों को भी पर लग गए। जिस भी फल को हाथ लगाएं कीमत सैकड़ों में है। फलों का बादशाह आम 150 रुपए फी किलो, आलू बुखारा 400 रुपए फी किलो, आड़ू 250 रुपए फी किलो, सेब 300 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहे हैं, जबकि बाकी फलों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। फल बहुत ज्यादा महंगे हैं। जिस फल को हाथ लगाएं उसका रेट जो है हमारी रेंज से बाहर है। जिस फ्रूट को हाथ लगाएं उसी का रेट इतना ले नहीं सकते। बच्चों को क्या खिलाएं? पहले तो तकरीबन 3 गुना ज्यादा महंगाई हो गई। फ्रूट वगैरह गरीब बंदे की पहुंच से बिल्कुल दूर हो गए हैं। मुल्तान के शहरी महंगाई माफिया के हाथों लुट रहे हैं, जबकि जिला इंतजामिया और मजिस्ट्रेट्स तक कहीं नामो निशान तक दिखाई नहीं देता। कैमरामैन एहसन नियाज़ी के साथ राना फारूक, ARY न्यूज, मुल्तान।